Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of BS Semester 5, as you know, due to the occurrence of COVID-19 pandemic, we are not in position to keep going with the classroom teaching learning process. So we have to switch to the online domain of this process. And in this regard, this is my first lecture that I'm delivering to you people. And I'm hopeful that the previous lectures taught so far would be absolutely understood by you people. And as the numerical problems that are displayed in here and the other problems related to the Dirac delta functions, these two sets of problems would have already been solved. This is just the recalling of those problems. That is the determination of the distance between this set and this set of coordinates, and these coordinates are in cylindrical polar coordinates. The second problem is related to the transformation, to the conversion of spherical polar coordinates into the Cartesian ones. And you know, very basic formulae are involved in it, so just apply those formulae to make this transformation. The third problem is related to the angle between the two vectors. So basically these are the two vectors, so you have to determine the smaller angle between them, right? For this you can apply two techniques, that is the dot product technique and the cross one, and you should have similar answer from both of the techniques. The next problem is related to the determination of area, right? A range is given. Okay, this is the theta, right? That lies between alpha and beta. These are arbitrary constants, so this theta lies between these two constants, and a spherical shell of radius a is given. So what you are to determine is the result when alpha is equal to 0 and beta is equal to pi. So you have to determine this. The next problem, problem number 5, this is the determination of an equation for the volume of a sphere of radius a from the differential volume, right? And you know the expression for the differential volume, right? And because the sphere word is used in here, so you have to consider spherical polar coordinates, right? And another thing is the differential volume. So this is as you remember, r square sine theta d theta d phi and dr. Hopefully you know this. Yes, so you have to apply this sort of expression, but remember the radius is not r, instead this is a. So problem number 6 says that you should consider cylindrical coordinate system to find the area of the surface of a right circular cylinder, right? So hopefully you would have grabbed that. And r is given to be 2 meter, height is 5 meter, whereas the angle phi lies between 30 degrees and 120 degrees, or equal to that. And problem number 7 is the
transformation of this equation to cylindrical coordinate system, and again some basic formulae are involved in it. Similarly, the next problem is related to the cylindrical coordinates, right? So you have to employ this cylindrical coordinate system to find area of the curved surface of a right circular cylinder of radius a and height h. Problem number 9, again usage of cylindrical coordinates is involved in it, and we have to integrate to obtain the volume of the right circular cylinder in this problem. And this is a vector, and this vector is given in r theta phi. So r theta phi means spherical polar coordinates, and you have to transform this vector into Cartesian coordinates. Right, so the next topic is the Helmholtz theorem, and I'm hopeful you know Dirac delta function and its basic properties and the related problems. So before discussing Helmholtz theorem, you should know the concept of a vector field and a scalar field, and these two concepts have already been discussed in my previous lectures. A vector field is the one giving us a two-dimensional or three-dimensional space from any physical quantity which is a vector, like a gravitational force field. Similarly, an electrostatic force field in which we have only an electric field, and we can consider a magnetic field which is a force field and which is a vector field. Similarly, we can consider an electromagnetic field consisting of both electric and magnetic components, and we can consider strong nuclear force field, weak nuclear force field. So we have lots of examples. So in general, if we consider a force field represented by F with arrow on the top, and this force field is having a property such that the work done in a closed path in that field is always equal to 0. So this is expressed in the form of integral in this way, that is integral around a closed path L, and then F dot dl vanishes. But remember, not all force field give you this property, right? So we have to consider those force fields which gives us this type of property. Then what Helmholtz theorem says, we will discuss it later, but for such a field in which the work done around a closed path is equal to 0, then there always exists a potential say phi such that F is equal to del phi. So this is a general concept before going to discuss Helmholtz theorem. So this is the statement of the Helmholtz theorem, which says that any smooth, rapidly decaying vector field. Okay, rapidly decaying means any vector field, any force field that
decays faster than 1 over r square at infinity. Let me repeat it. Any vector field that decays faster than 1 over r square at infinity, right? So any such field can be resolved into the sum of an irrotational vector field, which is one component of this field, and a solenoidal vector field, which is another component of the vector field. I know you still are confused in understanding this statement. Let me explain it a bit to you. You are quite aware of a vector, right? The representation of a vector. I think I should switch in Urdu so that you can understand it better. देखो स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है. जनरली आपको पता है कि एक वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एन एरो, राइट? तो इस वेक्टर को जनरली हम कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी वेक्टर, इसका एक एक्स कंपोनेंट हम लेते हैं, एक वाई कंपोनेंट लेते हैं. तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या लेते हैं कि एक वेक्टर के टिप से प्रोजेक्शन लेके एक्स एक्सिस पे उस प्रोजेक्शन को गिरा देते हैं. तो इसका जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे आ जाता है, तो ओरिजिन से लेके उस इंटरसेप्ट तक इसका एक्स कंपोनेंट आ जाता है. इसी तरह वेक्टर के टिप से वाई एक्सिस पे आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करें, तो जिधर इंटरसेप्ट आता है तो ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस वाले इंटरसेप्ट तक जो लेंथ आती है, तो ये लेंथ जो दूसरा वाई कंपोनेंट है उसकी लेंथ बन जाती है. तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. अब यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि ये दोनों कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं. ऑर्थोगोनल मीन्स दोज कंपोनेंट्स हैविंग 90 डिग्री एंगल बिटवीन ईच अदर, राइट? लेकिन याद रखें, ये तो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप वेक्टर के वो कंपोनेंट्स ले लें जो कि ऑर्थोगोनल हों. मसलन इसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बीच अदर देन 90 एंगल है, हम इस वेक्टर को इन कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी कोई कदर नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हम इसको कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे ये एक वेक्टर फील्ड है. तो वेक्टर फील्ड को हम दो ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं जिनके नाम इररोटेशनल, राइट? इररोटेशनल. इररोटेशनल का क्या मतलब है? जिसमें कोई कर्ल ना हो, कर्ल फ्री, यानी डाइवर्जेंट, कर्ल फ्री, इररोटेशनल. तो ये एक कंपोनेंट बन जाता है और इसी एक कंपोनेंट से हमारे पास एक पोटेंशियल वजूद में आता है. याद रखें, ठीक है? मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो. कोई भी वेक्टर फील्ड हम एक इररोटेशनल वेक्टर फील्ड और एक सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड में डीकम्पोज कर सकते हैं. अब सोलेनॉइडल क्या है? सोलेनॉइडल वो होता है जो कि डाइवर्जेंट फ्री हो. जिस तरह इररोटेशनल के लिए हमने रोटेशन फ्री का लफ्ज़ यूज़ किया, इसी तरह सोलेनॉइडल के लिए हम डाइवर्जेंट फ्री का लफ्ज़ यूज़ करेंगे. आगे आ रहा है, ये जो आप ये देख रहे हैं फिगर्स, इन फिगर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. ये
मसलन ये एक फील्ड है, यहाँ पे आप एक चार्ज कंसिडर कर लें, तो ये क्लास में भी मैं बता चुका हूँ कि ये आपको एक मैक्सिमम डाइवर्जेंट देता है, एक ऐसी फील्ड। तो दिस इज़ इररोटेशनल, कोई आप इसमें कर्ल या रोटेशन नहीं देख पा रहे, लेकिन डाइवर्जेंट है। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट सोलिनॉइडल एंड रोटेशनल, यानी डाइवर्जेंट फ्री। जिस तरह ये कर्ल फ्री है, इसी तरह ये डाइवर्जेंट फ्री है। होपफुली आपको अभी अंदाज़ा हुआ होगा कि कोई भी वेक्टर फील्ड हम इन दो कंपोनेंट्स में डीकम्पोज कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं एट द मैक्सिमम। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वेक्टर फील्ड में सोलिनॉइडल या रोटेशनल कंपोनेंट भी हो और इररोटेशनल या डाइवर्जेंट कंपोनेंट भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक या दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं। मसलन ये जो ऊपर लिखा है, मैं आपको कुछ क्लासिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मसलन इधर देखें, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसका जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो है, और डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक कंपोनेंट आपके पास ज़ीरो आता है तो दूसरा कंपोनेंट भी ज़ीरो आता है। एक कर्ल फ्री है और एक डाइवर्जेंस फ्री है, ज़ीरो डाइवर्जेंस और ज़ीरो कर्ल। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए चार्ज फ्री रीजन। चलो मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी दे दूं कि अगर आप पैरेलल मेटालिक प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लें जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्सोल्युटली पैरेलल हो, तो अंडर दिस सर्कमस्टांस आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस फील्ड में चूँकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्सोल्युटली पैरेलल हैं, तो फील्ड क्या है, न डाइवर्जेंट है और न रोटेशनल है। तो कर्ल फ्री और डाइवर्जेंट फ्री की एक एग्जांपल आ गई। इसी तरह बास फील्ड्स ऐसी फील्ड्स होती हैं कि जिसमें डाइवर्जेंस तो नहीं होती, यानी डेल डॉट एफ विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एक यूनी डायरेक्शनल केस है या वन डायमेंशनल केस है, तो डाइवर्जेंट फ्री लेकिन कर्ल फ्री नहीं है, कर्ल इसमें एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कितनी बेहतरीन एग्जांपल है इसकी कि ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको पता है कि जब एक करंट फ्लो कर रहा हो एक कंडक्टर में, तो इस वायर या इस कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, राइट। तो सर्कुलर का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, इसका मतलब है कि इसमें कर्ल मौजूद है, रोटेशन मौजूद है, लेकिन मसलन ये इधर देखें, इसमें रोटेशन मौजूद है लेकिन जो डाइवर्जेंट नहीं है, इसमें डाइवर्जेंस ज़ीरो है। और ये भी आपको पता है कि अपना राइट हैंड यूज़ करके थंब को हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट करें, तो जो आपकी दूसरे फिंगर्स हैं ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, डेल डॉट एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जिसमें डाइवर्जेंस उस फील्ड में आ रही हो लेकिन इसमें कोई कर्ल नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए चार्ज्ड रीजन, इन ए चार्ज्ड रीजन। इसका क्या मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं ये मसलन चार्ज रीजन, आप इधर एक चार्ज कंसिडर कर लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, प्रोटॉन ले लें, या कोई भी इवन मैक्रोस्कोपिक चार्ज्ड स्फेयर ले लें, इधर रखें, तो इसी स्फेयर के अराउंड हम जो फील्ड प्रिज्यूम कर सकते हैं वो ऐसी ही फील्ड है कि ये चारों तरफ जो है ये आपको डाइवर्जेंस देगी, लेकिन इसमें हम कोई कर्ल नहीं देख रहे। सो दैट्स वाई डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो।
एंड आपके पास जो है पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी वो ये है कि डेल डॉट एफ इज इक्वल नॉट टू ज़ीरो एंड डेल क्रॉस एफ इज इक्वल नॉट टू ज़ीरो, यानी दोनों आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका प्रोपिगेशन है, तो इसी प्रोपिगेशन में आपको जो है दोनों कंपोनेंट्स नॉन ज़ीरो आएंगे क्योंकि ये टाइम वेरिंग है। होपफुली आपको अभी तक अंदाज़ा हुआ होगा कि हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम जो है आपको क्या कंसेप्ट देता है एक वेक्टर फील्ड के बारे में। तो बेसिकली द हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम is related to the decomposing vector field, यानी डिकम्पोज हम करते हैं वेक्टर फील्ड को, एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर पोटेंशियल्स। जैसा कि मैंने बता दिया कि हर कंपोनेंट, नॉन ज़ीरो कंपोनेंट आपको क्या देता है, आपको देता है एक पोटेंशियल। दिस थ्योरम टेल्स अस हाउ टू डिकम्पोज वेक्टर फील्ड्स इनटू डाइवर्जेंसेस एंड कर्ल्स। It also tells us how to write the potentials that describe that fields, यानी हम पोटेंशियल्स को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, जो कि हमें उस फील्ड की शक्ल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन एक जनरल एग्जांपल ली गई है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो अब हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम को थोड़ा सा मैथमेटिकली हम कंसिडर करें कि अगर हम इसी फील्ड का डाइवर्जेंस ले लें जो कि हमने ऊपर भी लिया, और इसी डाइवर्जेंस को हम रिप्रेजेंट करें जैसा कि हम डी, तो डी एक्स, तो इसी डाइवर्जेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो कर्ल है, इसी फील्ड में अगर कर्ल आ रही है तो इसको हम सी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी, वो ये कि यहाँ पे डी के ऊपर कोई एरो नहीं है, बिकॉज दिस इज स्केलर एंड कम्स फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। दिस इज नेबला विच इज़ ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर एंड द एफ। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर के फॉर्म में एक रिज़ल्ट आना चाहिए, तो इसी को हम कर्ल, तो कर्ल की मुनासिबत से हमने सी लिखा और इसके ऊपर एक एरो लगाया। तो डी इज़ ए स्केलर फंक्शन जैसा कि मैंने बता दिया, एंड सी एक्स इज़ ए वेक्टर फंक्शन। सो दिस थ्योरम सेज वंस यू नो सी एक्स एंड डी एक्स, you can write down a recipe for the potentials of f of x। ठीक है, यानी मैंने बता दिया ना कि अगर ये कंपोनेंट यानी डेल डॉट एफ या डी, और ये कंपोनेंट यानी डेल क्रॉस एफ या सी, ठीक है, अगर ये नॉन ज़ीरो हैं तो आपको हर एक कंपोनेंट से एक पोटेंशियल वजूद में आता है, जनरेट होता है। तो अब यही पोटेंशियल्स हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। मसलन हमारे पास डी एक्स प्राइम्ड है। अब एक्स प्राइम्ड क्या है, क्योंकि हमने तो एक्स यूज़ किया ना, अब एक्स प्राइम्ड क्या है, एक्स प्राइम्ड लोकेशन है वो लोकेशन जहाँ पे जहाँ पे फील्ड का जो सोर्स है वो पड़ा हुआ है। मसलन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चार्ज वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये नॉर्मली हम ऑरिजिन भी लेते हैं, नॉर्मली हम ऑरिजिन लेते हैं। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो जिधर से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो ये ऑरिजिन पे हमने कंसिडर किया हुआ है। तो ऑरिजिन से लेके जो एक्स है, एक्स ये पॉइंट ऑफ
इंटरेस्ट है, यानी हमने इस फील्ड को एक्स पॉइंट पे कंसिडर किया हुआ है, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये पॉइंट ऑफ द सोर्स है जिस सोर्स से ये फील्ड जनरेट हो रही है। तो अच्छा, अब दोनों के दरमियान x और x प्राइम्ड के दरमियान अगर है, ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको खामखा ऑरिजिन पे कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर ये फ़र्ज़ करें ऑरिजिन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन पे है तो फिर x प्राइम्ड हम लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यानी जो सोर्स है, सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको खूब पता है कि दैट वुड बी x माइनस एक्स प्राइम्ड। अच्छा, तो फिर साई x एक पोटेंशियल है जो कि जनरेट होता है फ्रॉम d। तो दिस इज साई x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx प्राइम्ड d क्यूब x प्राइम्ड, क्योंकि ये एक फंक्शन है, राइट। ये हम इसी इंटीग्रेशन को ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम्ड, और इसी तरह 4 पाई x माइनस एक्स प्राइम्ड, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी से हमें जनरेट होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको ये पोटेंशियल देता है। इसी तरह जो वेक्टर पोटेंशियल है, राइट, और जिसका नोटेशन है ए एक्स, तो दैट वुड बी इंटीग्रल सी एक्स प्राइम्ड डी क्यूब एक्स प्राइम्ड 4 पाई एक्स माइनस एक्स प्राइम्ड। तो अब हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम को एक कंक्रीट मैथमेटिकल फॉर्म हम दे सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, जो कि फील्ड हमने कंसिडर किया हुआ है एक जनरल, दिस इज द सम ऑफ टू थिंग्स माइनस डेल साई एक्स प्लस डेल क्रॉस ए एक्स। psi x and ax may not be unique, but del psi x and del cross ax are unique। ये भी इस हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम का एक निचोड़ है कि हम एक रेसिपी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों तो यूनिक नहीं हो सकते ये दोनों, लेकिन एक का डाइवर्जेंस और दूसरे का कर्ल ये यूनिक हैं। दिस इज the essence of this Helmholtz theorem। तो इसको अगेन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम को मैक्सवेल्स इक्वेशन पे अप्लाई करें। हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी हमने कंसिडर किया हुआ है, और ये कर्ल भी हमने कंसिडर किया हुआ है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो हमने कंसिडर किया हुआ है, और इसी तरह कर्ल भी हमने कंसिडर किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये 4 जो इक्वेशन का एक सेट है, तो इसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। बाकी आपको होपफुली पता होगा कि ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, राइट। इसी तरह ये जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और कर्ल के फॉर्म में देता है। और इसी तरह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लिंक्ड अप है इस जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, राइट।
म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जे क्या है, ये करंट डेंसिटी है। अब देखें, हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम हमें यह कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, यानी हमारे पास या डेल डॉट ई है, या डेल डॉट बी है, या डेल क्रॉस ई है, या डेल क्रॉस बी है, तो हमारे पास कोई कोई ख़ास मतलब फिज़िकल इंटरप्रिटेशन चीज़ों की नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। जबकि रियल स्टफ़ जो हमारे पास है, जो कि रियली हमें एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देता है, एलाबोरेशन देता है चीज़ों का, वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो वो राइट हैंड साइड पे दो चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक मैग्नेटिज्म है। तो अगर हमें सी एक्स और डी एक्स का पता है, तो हम एफ ऑफ एक्स जो कि एक फील्ड है जनरल फॉर्म में, इसके पोटेंशियल के लिए हम रेसिपी लिख सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अगर हम अप्लाई करें, यानी इन मैग्नेटिक फील्ड्स जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करें, तो ई के लिए फिर हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा कि आपको पता है कि कोई टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस एक स्टैंड स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास जो है वो बिल्कुल पैरेलल हैं, तो कोई ये नहीं ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल हों, पैरेलल भी हो सकते हैं। और अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो फिर डाइवर्जेंस उसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन टाइम वेयरिंग नहीं है, ये फैक्टर अहम है, इसको आप नोट कर लें। तो कर्ल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कर्ल सी ज़ीरो है आपके पास, ठीक है, तो ए ई क्या है? ए ई आपके पास क्या है? आपके पास ये है कर्ल ई। मेरी बात समझ में आ रही है? ए ई इज इक्वल टू कर्ल ई। ठीक है, यानी जो कर्ल ई है यहाँ पे, कर्ल ई, दिस इज इक्वल टू सी। मैं थोड़ा सा लिख लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। कर्ल, मैं आपको बताता हूँ कि कर्ल ई curl E, right, this is equal to C. This is equal to C. ठीक है, अब जो है ए ई, ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है कर्ल सी के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर कर्ल सी में ले लूँ, कर्ल सी, यानी इसका अगर मैं कर्ल ले लूँ तो कर्ल ई आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ल ई मेरे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये ए ई, ये वो पोटेंशियल है जो कि हमारे पास इसी से आ रहा है, कर्ल सी से आ रहा है। तो कर्ल सी इज इक्वल टू कर्ल ई। तो कर्ल ई, यानी दो दफ़ा अगर आप कर्ल ले लें किसी वेक्टर का, तो वो आपको ज़ीरो देता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है वो आपको ज़ीरो देता है। मसलन ये देखें,
मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास दो पोटेंशियल्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इसके दो पोटेंशियल्स आ रहे हैं। एक स्केलर पोटेंशियल साई एक्स के फॉर्म में आ रहा है, एक वेक्टर पोटेंशियल ए ई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। तो अब अगर ए ई आपके पास ज़ीरो है, जैसा कि इधर आपने देख लिया कि ए ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो आपके पास ये डेल क्रॉस ए ई ये ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसका जो डाइवर्जेंस है, तो इसका डाइवर्जेंस नॉन ज़ीरो है, तो दिस इज़ रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर इसका डाइवर्जेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये नॉन ज़ीरो है, तो इसी से जन्म लेता हुआ पोटेंशियल विच इज़ साई एक्स एंड विच आल्सो इक्वल्स वी, कैपिटल वी, तो ये बराबर है किस चीज़ के, रो जो आपने जैसा कि जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर पढ़ा, रो डी क्यूब एक्स प्राइम्ड ओवर 4 पाई एक्स माइनस एक्स प्राइम्ड। तो ये इसी इंटीग्रल का है, तो ये v के बराबर है। तो अब आपके पास ई एक्स फाइनली आपके पास माइनस डेल वी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो राइट वाली टर्म है ये वैनिश हो गई। अब इसको मज़ीद कंप्रहेंड करने के लिए मैग्नेटोस्टैटिक स्पेस पे अप्लाई करें। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपके पास जो है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती, यानी वो टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डाइवर्जेंस है वो आपके पास ज़ीरो है। अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो इसी से रिलेटेड जो पोटेंशियल है जैसा कि आपने पढ़ा वो भी ज़ीरो है, क्योंकि क्योंकि यानी डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट इज़ वाई साई एक्स बी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जो 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 पोटेंशियल है और वो कर्ल से रिलेटेड है वो आपके पास बराबर है म्यू नॉट जे। ठीक है, जो कर्ल से रिलेटेड पोटेंशियल है वो आपके पास बराबर है म्यू नॉट जे के। ठीक है, तो अब जो वेक्टर पोटेंशियल है जो कि यहाँ से जनरेट होता है वो है ए एक्स बी विच इज़ इक्वल टू ए एंड विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट जे एक्स प्राइम्ड डी क्यूब एक्स प्राइम्ड ओवर 4 पाई एक्स माइनस एक्स प्राइम्ड, यानी नॉन ज़ीरो है। तो जो बी एक्स है जैसा कि ई एक्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बी एक्स है, ये बराबर है माइनस डेल साई एक्स बी प्लस डेल क्रॉस ए बी, यानी स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। तो चूँकि आपके पास ये ज़ीरो के बराबर है ये वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म, तो इसी तरह बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए आपके पास फाइनली ये टर्म आ जाती है। तो होपफुली आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा। अगर फिर भी आपने पूरी तरह लेक्चर को ग्रैब नहीं किया तो इसी लेक्चर को आई विल रिकमेंड कि इसी लेक्चर को फिर से सुने, बार बार सुने। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हों तो एज ऑलवेज आई विल वेलकम ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस। ठीक है, ज़रूर पूछें, डोंट बी शाय। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा जो ईमेल है तो वो आपको पता होना चाहिए,
दिस इज़ मैं लिखता हूँ अपना ईमेल, तो इसमें आप ज़रूर लिखें। ये मेरा ईमेल है कि हिदायत फिज़िक्स @uop.edu.pk। इसको आप लोअर केस में कर लें तो अच्छा होगा। दिस इज़ हिदायत फिज़िक्स @uop.edu.pk। ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आपके रिस्पांस का मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।